Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. Today, we will start our new chapter, and the name of this chapter is Money and Credit. It has been taken from your course book Eco. First, we recap the basic concept of this chapter, that what exactly we will learn in this chapter. Under this chapter, we'll discuss about all types of the money which was being earlier used, and the types of the credits, and the source of the credits too, from where we get the different kinds of the credits, like formal, informal. Okay. And we also discuss about that before, when was there was no use of the money, then what was being used for making the exchange, the system of uh, exchange. Okay, so that all things we'll discuss today. So the first topics we are going to start by that. Just think about a time where there was no money. Nowadays, we will do a lot of work with the help of the money. We simply purchase anything or sell anything, and we get the money in return. But early time, when there was no money, then how this kinds of the things is being done? Let's think about that. The first things earlier, there was a system that is known as a barter system. It is also being known as a double coincide of wants. देखिए, under this particular system, suppose that you have something in spare, and you need to find out the person who need the things that you have in spare, and that particular person must have the things that you need, and he must have this kinds of the thing in spare. To make you properly understand, yes, कि suppose that आपके पास suppose that wheat है, और यू नीड शूज़, और एक शू मेकर है कॉबलर, उसके पास शूज़ हैं, ही नीड वीट, then this become a double coincide of wants. Then you will deal with the wheat. आपको शूज़ की ज़रूरत है और उसको wheat की ज़रूरत है. You give the wheat to that particular system person, and that particular person will return the shoes to you. So in this way the exchange things has happened early time, before there was no money. ठीक है. So it was a very complicated task to exchange the things in that time of periods, because you need to find out a person's, that is very much complicated. ठीक है. And this particular system is known as a double coincide system. इसको हम क्या बोलते थे? डबल coincide सिस्टम. डबल coincide सिस्टम के मतलब आपको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको वही चीज़ रिक्वायर्ड हो जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो, और उसके पास वो चीज़ भी अवेलेबल होनी चाहिए जो आपको ज़रूरत है. सो दिस वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क अर्लियर, इट वॉज बीइंग डन, बट now it become very much complicated for exchange. So देखिए, why the people start thinking of that? तो money exactly है क्या? The money is nothing, it just fulfill our materialistic needs, and it is a medium of exchanging the things. Suppose it's practically not possible that we need to find out the person who need exactly the thing which we have a spare. So what is one source has been settled, that is the money. Each and everything is being set up according to the money. और उस मनी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम हर एक चीज़ को पहले मनी में कन्वर्ट करते हैं, फिर मनी से उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं. सो द मनी इज़ वर्किंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. सो बिफोर स्टार्ट दिस थिंग्स, फर्स्ट वी जस्ट टेक अ लुक कि मनी के बाद जो बाटर सिस्टम हुआ करता था, जिसको हम डबल कॉइनसाइड बोलते थे, इसको बाटर सिस्टम भी बोला करते थे. तो बाटर सिस्टम के बाद फिर नेक्स्ट सिस्टम क्या डेवलप हुआ? तो नेक्स्ट सिस्टम जो डेवलप हुआ था वो एक्सचेंज ऑफ मीडियम बाय कैटल और बाय ग्रेन्स. यानी किसी भी चीज़ की जो वैल्यू थी वो कैटल और ग्रेन के अकॉर्डिंग हो जाती थी. जैसे मान लो किसी भी चीज़, इंसान से आपने कुछ भी परचेज़ किया या कुछ भी लिया, तो उसके बदले में आप उसको ग्रेनरीज यानी गेहूँ, चावल या दाल दे सकते थे, या अगर कोई बड़ी चीज़ परचेज़ की तो आप उसको जानवर भी दे सकते थे. यानी कैटल्स के बेसिस में एक्सचेंज चलते थे हर चीज़ के, या फिर इसके बीच में. उसके बाद क्या था? क्वाइंस आए. जो कॉइन्स है, देखिए, वी हैव सीन दैट द मनी इज समथिंग दैट वी एक्ट इन अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन. यानी जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो यू नीड अ मनी, एंड इट बिकम अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइन, अ वेराइटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूज इन द मनी. फॉर एग्जाम्पल, सिंस द अर्ली टाइम, फॉर द अर्ली एजेस, द इंडियंस वर यूज ग्रेन एंड कैटल एज अ मनी. यानी पहले लोग हर एक चीज़ की वैल्यू ग्रेन और कैटल्स के बेसिस में लेते थे, जब वहाँ पर कॉइन्स नहीं थे या मनी नहीं थी इंडिया में. तो हर चीज़ की वैल्यू कैटल और ग्रेन के बेसिस में मेज़र कर दी जाती थी. ठीक है. देन आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ कि एजेस बढ़ते चले गए. उसके बाद देयर आफ्टर क्या है? गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स,
कॉइन्स है, अ फ्रेज विच कंटिन्यू वेल इन द कंट्री, ठीक है। तो उसके बाद क्या आए कंट्री में, कॉइन्स हुए। अब कॉइन्स जो होते थे वो वैल्यू बेस्ड मनी कहलाते थे, यानी द वैल्यू ऑफ द कॉइन इज बीइंग ट्रीटेड और कंसीडर्ड एज द वेट ऑफ द कॉइन, कि जैसे गोल्ड का कॉइन है तो उसका कितना वजन है, उस कॉइन के वजन के बराबर वो उस गोल्ड के कॉइन की वैल्यू होती थी, ठीक है। तो दिस वाज द वैल्यू बेस्ड मनी, यानी अगर उस कॉइन से स्टैम्प भी खत्म हो जाती थी तो उतने गोल्ड को आप यूज़ कर सकते थे, उतने रुपीज़ के फॉर्म में। उसके बाद जो नेक्स्ट मनी आई जो करंटली आता है वो होती करेंसी। देखिए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द मनी इंक्लूड्स द करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। आज के टाइम में पेपर नोट्स है कॉइन, लेकिन जो कॉइन है आज के टाइम पे वो वैल्यू बेस्ड नहीं है। आप उन कॉइन, जैसे मान लो अगर गिल्टी के कॉइन है तो उनकी वैल्यू उनकी अंदर गिल्टी जितनी यूज़ है उसके बराबर नहीं होते हैं, जबकि पहले जो गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज के कॉइन होते थे, एंड दैट पर्टिकुलर कॉइन्स द वैल्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द कॉइन टू। आज के टाइम पर जो मनी है वो ऑथराइज्ड मनी है, एक कमिटमेंट है। यू कैन सी स्टेटमेंट इज बीइंग रिटन ऑन ईच एंड एवरी नोट दैट आई प्रॉमिस टू पे दिस मच मनी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट हर मनी पे, एक पेपर पे, यानी एक ऑथराइजेशन है, एक पेपर पे लिखा हुआ अथॉरिटी है और एक अथॉरिटी के साइन किए गए हैं। तो आज के टाइम की जो मनी है, जो पेपर मनी है, वो ऑथराइज्ड मनी है, ना कि वैल्यू बेस्ड मनी है। यानी अगर उस पेपर से वो साइन हटा दिए जाते हैं तो उस मनी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और ये अथॉरिटी कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको ये कमिटमेंट करता है कि ये जो है इट विल वर्क एज अ नोट। मॉडर्न देखिए पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, अनलाइक द थिंग्स विज यूज्ड इन अ मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ द प्रेशियस मेटल गोल्ड सिल्वर, ठीक है। एंड अनलाइक द ग्रेन एंड केटल दे आर नाइदर बीइंग एवरीडे यूज, एंड मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, ठीक है। देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ, इट एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए मैं बात कर रहा था ना कि करेंसी जो है हमारी वो ऑथराइज्ड है, तो अगर वो गोल्ड और प्रेशियस मटेरियल की नहीं है तो इसको हम ऑथराइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट ने ऑथराइज करके दी हुई है कि दिस थिंग इज़ बीइंग ट्रीटेड एज अ अथॉरिटी, और हमें अथॉरिटी दी गई है कि हम इस चीज़ को पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस लाइन को, वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, यानी कंट्री की गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज कर दिया कि ये चीज़ जो है वो एज अ करेंसी यूज़ की जाएगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट, अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो इस चीज़ की अथॉरिटी देता है। देखिए इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ द करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर द इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू द करेंसी नोट, ठीक है। यानी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से कि जो करेंसी नोट इशू करने की ड्यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को दे रखी है, और वो ही केवल नोट को इशू कर सकते हैं, और उस हर एक नोट पे गवर्नर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के साइन होते हैं, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, एक नोट पे 15 लैंग्वेजेस में उस नोट को पीछे बैक साइड में लिखा होता है उस नोट की वैल्यू, और उस पर एक स्टेटमेंट लिखा होता है हिंदी में कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने की वो देता हूँ, परमिशन देता हूँ या ये करता हूँ। आप इस नोट्स में भी चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट, और हर एक नोट पे क्या होता है, साइन भी होते हैं गवर्नर ऑफ दैट। अगर वो साइन नहीं है तो द नोट इज़ नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है। The law legally the use of the rupee in a medium of the payment cannot be refused to the settlement of the transaction। और गवर्नमेंट इस चीज़ को लीगल लॉ बनाता है कि कोई भी उस पर्टिकुलर नोट को डिनाई नहीं कर सकता कि मैं इस नोट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन बाय द अथॉरिटी, एंड अथॉरिटी कौन है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई जो ऑर्गेनाइजेशन है। नो इंडिविजुअल इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ टू पेमेंट मेड ऑन रुपीज़, कोई भी लीगल तरीके से मना नहीं कर सकता। इलीगली वो मना करेगा तो आप उसके ऊपर लीगल कार्रवाई कर सकते हो, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो अगर वो कोर्ट पैसे को लेने को मना करता है। हैंस द रुपीज़ इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो अब जो करंटली मनी चल रही है, जो मनी है जो आरबीआई ऑथराइज करता है, वो आपकी कहलाती है ऑथराइज्ड मनी और पेपर मनी, ठीक है। अब ये डिपॉजिट विद द बैंक दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।